Yeah. So till now I have told you about that what is angle modulation, what are its two types, frequency and amplitude, frequency and phase. Whenever you have to modulate the angle, you need to do the changes in this part, either in phase or in frequency. So while doing the changes in the frequency and phase, we saw that the equation of Fm is A cos 2 pi fct plus 2 pi kf integral of mt dt. And in the case of Pm, the equation was A cos 2 pi fct plus kp mt. Then I told you that what is the relation between these two. The relation was required so that we can study one and then we can easily implement the second technique. Fine. So the basic relation is that both the terms are having same thing. Only the difference is that here it is 2 pi kf, it is kp, and these both are the sensitivity due to the modulator. Right. So it can be adjusted as per the requirement. In PM it is mt and in FM it is integral of mt. So we can use integrator or differentiator to get this output. Then next in the next last class I told you that what is the bandwidth of FM, sorry, angle modulated wave. And through a relation we came to know that it is infinite, right? And because of infinite bandwidth we divided our angle modulated system into two parts. One is narrow band, another is wide band. ठीक है, जो हमने बैंडविड्थ का इक्वेशन निकाला था अगर हम सिर्फ एफएम की टर्म्स में बात करें, सो इट वाज इक्विवेलेंट टू ए cos omega ct minus kf at sin omega ct minus kf square a squared t cos omega ct and so on. ठीक है, so here with the help of this equation we picked the varying value kf into at and we said that if kf into at is much less than 1, then the equation will be narrowband FM, and if kf into at is much greater than 1, then it will be wideband. Okay? Then I told you the equation of narrowband, expression of narrowband and block diagram of narrowband. यहाँ तक हम already कर चुके हैं. Now what we need to start? We need to do the I also told you that what is the modulation factor. When we kept the value of mt as Vm cos omega mt, then we came across a term which is named as modulation factor, and its value is kf into Vm upon omega m, which practically is delta f upon fm. ठीक है, फाइन. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस, एनीबडी? ओके, जस्ट अ मिनट. चलिए, बिफोर गोइंग टू दी वाइड बैंड एफएम, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये जो एमएफ है इसे हम कभी कभी बीटा भी बोलते हैं.
कुछ बुक्स में you'll find that जैसे MA को म्यू बोला गया था, ऐसे ही MF को बीटा भी बोला जाता है. चलिए ना, नेक्स्ट टॉपिक इज वाइड बैंड एफएम. वाइड बैंड एफएम के केस में हमें इक्वेशन पता है क्या होती है. हियर AM स्टैंड्स फॉर एंगल मॉड्यूलेशन. ठीक है, दोबारा से हम इक्वेशन लिख लेते हैं. cos ओमेगा CT minus KF into AT sin ओमेगा CT minus KF square into A square T cos ओमेगा CT प्लस, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल भी होगा सॉरी, प्लस KF क्यूब इंटू A क्यूब T अपॉन 3 फैक्टोरियल sin ओमेगा CT and so on. ठीक है, so this was my equation when the value of KF into AT is large, which is much greater than 1. ठीक है, so in this case the bandwidth required will be quite large and that bandwidth is called as wide band. That is why they are named as wide band. ठीक है, why? Because in this case we cannot ignore this higher terms because the value is greater than 1. So if the value is greater than 1, then its square will be more, its cube will be more, and its fourth power will be another more, right? So we cannot ignore it. So here for estimating the bandwidth, we will be using root of pioneers for estimating the bandwidth. रूट ऑफ पायनियर्स क्या है? ये एक मैथमेटिकल रूल होता है. ठीक, तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए कुछ अजम्पशंस करेंगे. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, इसलिए प्लीज सुन लेना ध्यान से. ठीक है, नाउ लेट MT is having bandwidth B hertz. ठीक है, now next step will be you have to approximate MT as a staircase signal. ठीक है, और उसे हम नाम देंगे M∩T. यानी कि हमने क्या किया, हमने अपने मैसेज सिग्नल को सैंपल कर लिया एक तरीके से. ठीक है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के अप्रोक्सीमेटेड पल्सेस ले लिए, तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, उसे सैंपल कर लिया. ठीक है, अब जब हमने अपने MT को पल्सेस ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड में ब्रेक किया, ठीक है, तो हर पल्स को हमने नाम दिया, ऐसे देखो, ईच पल्स इज कॉल्ड एज सेल. ठीक है, अब हर पल्स का एक नाम है विच इज सेल. क्यों करते हैं हम ये स्टेप? देखो, आपने बोला कि आपके पास एक सिग्नल है जो कि इनफाइनाइट बैंडविड्थ का है, वाइड बैंड है. ठीक है, तो उस वाइड बैंड को हमें कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए फाइनाइट तो करना ही पड़ेगा, और किसी भी सिग्नल को फाइनाइट करने का तरीका होता है कि हम उसको सैंपल करें. इसीलिए हमने यहाँ पे अपना मैसेज सिग्नल लिया और मैसेज सिग्नल को बोला कि भाई हमने उसको स्टेयरकेस सिग्नल में अप्रोक्सीमेट कर लिया. ठीक है, और ये कब होता है, हम कैसे मानेंगे कि ये हमने जो अप्रोक्सीमेशन किया ये करेक्ट है? हम ऐसे मानेंगे कि हम जो सैम्पलिंग करेंगे, सैम्पलिंग डन should follow the sampling theorem.
And how does it follow the sampling theorem? It follows the sampling theorem when the sampling is done at Nyquist rate. So sampling done should follow Nyquist rate, and which was, I already told you, that Fs should be greater than or equal to twice of B hertz. B क्या है? Message signal की bandwidth. तो Fs should be greater than twice of message signal bandwidth. अगर इक्वल टू है या ग्रेटर देन है तो मतलब मेरे पास जो सैम्पलिंग हुआ है वो करेक्ट हुआ है, और जो मैंने अप्रॉक्सीमेशन किया है ये मानते हुए कि मेरे एक सेल में सारी इंफॉर्मेशन होगी, वो करेक्ट है। ठीक है, तो अगर एफ एस ये है तो टी क्या हो जाएगा? 1/2b सेकेंड्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने मैसेज सिग्नल को एक स्टेयर के सिग्नल में बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। स्टेयरकेस सिग्नल का मतलब होता है इस तरीके का सिग्नल जो देखने में सीढ़ियों जैसा लगे। ठीक है, अब हमने क्या बोला आपको, मैंने जब आपको दिस इज एम कैप टी, क्या क्या अजम्पशंस करे, हमने अजम्पशंस करे कि जो ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज इक्वल टू 2b हर्ट्ज, और जो टी एस है दैट इज 1/2b। टी एस यानी कि यहाँ से यहाँ का टाइम पीरियड, सो दिस इज 1/2b। ठीक है, और हमने क्या बोला, बस अभी तक हमने यही बोला। ठीक है, अब हम क्या कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि जो हमने कोई भी एक सेल ले लेना है, कोई भी। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल्स टू टी के। ठीक है, तो एट टाइम t इज इक्वल्स टू टी के विद कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड मैं ये वाला सेल मान ली। ठीक, तो दिस विल बी कॉल्ड एज MTK। फाइन, अब ये मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास एक वाइड बैंड है जो कि इनफाइनाइट है, मैं उस पूरे बैंड को मॉड्यूलेट नहीं कर सकती। टू कैलकुलेट द बैंडविड्थ और टू कैलकुलेट द इक्वेशन आई कैन नॉट गो फॉर द कंप्लीट बैंड, राइट। सो व्हाट हैव आई डन, मैंने अपने बैंड को सैम्पल किया और उस सैम्पल वैल्यू में से कोई भी एक सैम्पल उठा लिया, मतलब एक सेल उठा ली, और अब मैं उस सेल पे सारा प्रोसेस करूंगी और ये अज्यूम कर लूंगी कि वो प्रोसेस बाकी सारी सेल्स पे सेम तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक, तो ये अजम्पशन करने का जो पर्पस था वो ये था। तो अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एम ऑफ टी के जो सेल है उस पे जब मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन परफॉर्म करवाऊंगी, ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या होगी, माई इक्वेशन विल बी sinusoid of an angle, and that angle is what, that angle is omega c plus kf m of tk। ठीक है भाई, हम यही तो करते हैं ना,
के एफ इंटू एम टी करते हैं, यहाँ पे हमने के एफ एम ऑफ टी के कर दिया। एम टी के मतलब वो एक पर्टिकुलर सेल, ठीक। अब देखो क्या होता है, हम जब किसी भी सिग्नल को सेंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म लेते हैं। डायरेक्ट हम सिग्नल को तो कभी भेज ही नहीं रहे हैं, है ना, हम एस टी कभी नहीं भेजते, हम क्या भेजते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म एस ऑफ ओमेगा या फिर एस ऑफ एफ, ठीक। तो इसी तरीके से हम जो हमारे पास साइनोसॉइड ऑफ ओमेगा सी प्लस के एफ एम टी के आएगा, हम इसको भी ऐसे तो नहीं भेजेंगे, इसको हम कैसे भेजेंगे, इसका स्पेक्ट्रम भेजेंगे, ठीक है। और सिग्नल्स में आप लोग पढ़ेंगे या शायद पढ़ चुके होंगे, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, जो भी आपके पास रेक्टेंगुलर पल्सेस होती हैं, रेक्टेंगुलर पल्सेस, इनका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, इट इज अ सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन मतलब पता है आप लोगों को, ये पढ़ चुके हो? यस स्टूडेंट्स? नो मैम। नहीं पढ़ा है। ओके देन दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट। चलिए, चलो आई विल नॉट टेल यू मच, क्योंकि वो आप सिग्नल्स में ही पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर तरीके से। मैं आपको सिर्फ ये समझा देती हूँ कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये एक रेक्टेंगुलर पल्स है, मैं ड्रॉ करूंगी तो वो थोड़ा ठीक से आएगा नहीं, आई विल शो इट टू यू, एक सेकंड। ये ठीक है। चलिए, ये देखिए, देखो जो मैं आपसे बोल रही थी वो ये होता है, जैसे हमारे पास एक टाइम डोमेन में एक रेक्टेंगुलर पल्स है, ठीक है, विच इज मेंशन यहाँ पे। इसका जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो एक सिंक पल्स आती है। सिंक पल्स का मतलब होता है कि एट सेंटर पॉइंट कैन बी द सेंटर फ्रीक्वेंसी और इट कैन बी ओरिजिन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस पॉइंट पे आपका जो एम्पलीट्यूड है, इट विल हैव मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग इस तरीके से, ठीक है। तो आपका जो ये टाउ टाइम पीरियड होता है, एक पल्स का जो टाइम पीरियड होता है, उतना ही उसका ट्वाइस होगा ये टाइम पीरियड, हाफ हाफ चला जाएगा, हाफ इस साइड हाफ इस साइड। यही होता था जब हम किसी भी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म में लिखते थे, जैसे ओमेगा एम लिखते थे, तो यही करते थे ना कि जीरो पे ये प्लस ओमेगा एम, ये माइनस ओमेगा एम, डबल हो जाती थी हमारी बैंडविड्थ, ट्वाइस हो जाती थी। वही यहाँ पे हुआ है, ठीक है। बस जो फंक्शन है दैट इज दी रिड्यूसिंग फंक्शन ऑफ साइनोसॉइड, और इसे हम बोलते हैं सिंक फंक्शन, ठीक है। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज कि जब भी हम, अब क्यों बताया मैंने आपको, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम अपने सिग्नल को डायरेक्टली नहीं भेजते, हम उसका फुरियर भेजते हैं, ठीक है। अब जब हम फुरियर भेजेंगे एक रेक्टेंगुलर पल्स का, तो वो फुरियर किस फॉर्म में जाएगा, सिंक फंक्शन की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको जो बताया था अभी तक वो ये था कि मैसेज सिग्नल को हमने सैंपल्स में ब्रेक किया लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे हमने जब इसको सैंपल्स में ब्रेक कर लिया, उसके बाद हम क्या देखेंगे
कि हमारा कैरियर क्या होगा। कैरियर यानी कि जो सिग्नल से हम इसे मॉड्यूलेट करने वाले हैं, मतलब हमारी जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होगी, व्हाट विल बी दैट फॉर वन पल्स। समझिएगा, एक पल्स को आप इस कैरियर से मॉड्यूलेट कर रहे हैं, पूरे सिग्नल को नहीं, सिर्फ एक पल्स को। ठीक है, ओमेगा आई क्या हो जाएगा, ओमेगा सी प्लस के एफ एम टी के। ओमेगा आई कैसे निकालते हैं, आपको पहले भी बताया है, डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं एंगल का 1/2 पाई की लिमिट से। ठीक है, तो अब इसके बाद जो आपका मॉड्यूलेटेड वेव होगा वो क्या होगा, इट विल बी अ सिंक फंक्शन। ठीक है, स्पेक्ट्रम जब हम इसका प्लॉट करेंगे देन इट विल बी अ सिंक फंक्शन। और वो कैसा दिखेगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी प्लस के एफ एम टी के। ठीक है, तो इसी के अक्रॉस आपके पास स्पेक्ट्रम आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक अजम्पशन करेंगे, हम ये बोलेंगे लेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एम टी के इज इक्वल्स टू एम पी। नॉर्मलाइज करना पड़ता है इक्वेशन को, तो हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एम टी के बोल दिया एम पी है। ठीक, तो अब जो हम प्लॉट करेंगे दैट विल बी ओमेगा सी प्लस के एफ एम पी, ओमेगा सी माइनस के एफ एम पी, क्योंकि ये प्लस माइनस होता है, राइट। इसके अक्रॉस हमारा सिंक फंक्शन प्लॉट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे स्पेक्ट्रम है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में जाएगा। ठीक है, और ये जो आप प्लॉट करेंगे इसका जो बैंडविड्थ होगा दैट विल बी 4 पाई ऑफ बी। वाई 4 पाई बी, देखो आपके पास जो टाइम पीरियड है दैट इज 1/2b, राइट, एंड फ्रीक्वेंसी क्या है 2b। तो जब आप इसको, जब हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया था तो आपने क्या देखा था, जो बैंडविड्थ होती है वो ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखें, सो बैंडविड्थ विल बी 4 पाई ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमने माना, कैसे आई है ये समझते हैं। देखो ये कैसे आएगी, आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं दैट इज ओमेगा सी प्लस माइनस के एफ एम पी। तो अगर इसमें से हम हायर फ्रीक्वेंसी निकालें सो दैट इज ओमेगा सी प्लस के एफ एम पी, लो फ्रीक्वेंसी निकालें दैट इज ओमेगा सी माइनस के एफ एम पी। बैंडविड्थ क्या होता है, एफ एच माइनस एफ एल। अच्छा, और ये जो पूरा बैंड है ये मैंने आपको बताया कि ये 4 पाई बी के अक्रॉस बना हुआ है। 4 पाई बी क्या है, इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इन दोनों में 4 पाई बी एक में ऐड होगा एक में सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक, सो नाउ माय बैंडविड्थ विल बी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस विल बी ट्वाइस ऑफ के एफ एम पी प्लस 4 पाई बी। ठीक, दिस इज माय बैंडविड्थ।
ठीक है, और हमें ऑलरेडी पता है कि के एफ इंटू एम्पलीट्यूड क्या है, मॉड्यूलेशन फैक्टर बताया था विच वॉज के एफ इंटू वी एम। वी एम क्या था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सिमिलरली यहाँ पे एम पी क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो के एफ इंटू एम पी क्या होता था, के एफ इंटू एम पी था डेल्टा एफ। ठीक, अब अगर ओमेगा की टर्म्स में होगा तो इट विल बी डेल्टा ओमेगा, और अगर एफ के टर्म्स में होगा तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, सो हेयर वी कैन से दैट डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम पी अपॉन 2 पाई। क्यों, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम फिर से बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल देखें, फाइनल आउटपुट देखें, सो दैट विल बी व्हाट, इट विल बी 1/2 पाई twice of KFMP plus 8 एक सेकेंड, यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए। पूरी इक्वेशन को 2 पाई से डिवाइड किया हमने, पूरी इक्वेशन को। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट विल बी 2 इंटू के एफ एम पी अपॉन 2 पाई प्लस 8 पाई बी अपॉन 2 पाई। सो यू विल बी लेफ्ट विद के एफ इंटू एम पी अपॉन 2 पाई क्या है, डेल्टा एफ, तो ट्वाइस बाहर ले लो, डेल्टा एफ प्लस 2b, 2 of delta f plus 2b. This will be the bandwidth of your wide band FM. Bandwidth जो हमने कैलकुलेट करी, ठीक है, लेकिन ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, और एक्चुअल बैंडविड्थ हमारी कितनी है, अगर हमने ये बोला, जब भी हम बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्वाइस ऑफ एफएम कर देते हैं जनरली। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ 2b था तो टोटल सिग्नल का बैंडविड्थ कितना होना चाहिए, 4b। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास जो ये इक्वेशन आया है, इट इज समहाउ हायर देन द एक्चुअल मैसेज सिग्नल, मतलब एक्चुअल बैंडविड्थ। ठीक है, इट इज हायर देन एक्चुअल बैंडविड्थ। ठीक, तो अब यहाँ पे हम ये बोलेंगे डेल्टा एफ क्या है, डेल्टा एफ इज अ फंक्शन ऑफ के एफ एंड एम पी। के एफ क्या था, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम नैरो बैंड और वाइड बैंड कैसे निकालते थे, हम बोलते थे कि के एफ इंटू एम टी अगर, या ए टी कह लो, के एफ इंटू ए टी अगर 1 है, लेस देन 1 है, तो ये होगा नैरो बैंड एफ एम, और के एफ इंटू ए टी अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये होगा वाइड बैंड एफ एम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे के एफ को लेस देन 1 रखूंगी तो आपका बैंडविड्थ कितना आ जाएगा, if kf is kept less than 1 then bandwidth will be 4b। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हमारी बैंडविड्थ कितनी होती है, 2b। किसकी, नैरो बैंड एफएम की जो बैंडविड्थ होती है दैट इज 2b, लेकिन इस फॉर्मूले से इट इज कमिंग टू बी 4b। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इससे पता चला कि हमारा जो कैलकुलेशन है, जो हमने अप्रोक्सीमेशन किया था स्टेयरकेस सिग्नल का, फिर उसमें हमने उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया था, वहां पे कहीं ना कहीं कोई एरर है। ठीक है, तो उस एरर को रिड्यूस करने के लिए डायरेक्टली बाय हिट एंड ट्रायल मेथड द बैंडविड्थ वाज केप्ट टू बी इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है, यहाँ का ट्वाइस रिमूव कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि वाइड बैंड एफएम का हमारे पास कोई करेक्ट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन नैरो बैंड एफएम का है। तो नैरो बैंड एफएम की वजह से जो फ्रीक्वेंसी आनी थी, हमने उसके हिसाब से बैंडविड्थ को अप्रोक्सीमेट कर दिया, एस्टिमेट कर दिया। ठीक है, अब अगर इस कंडीशन में मैं अपना कंडीशन अप्लाई करूं के एफ लेस देन 1, तो क्या होगा, नैरो बैंड एफएम के केस में बैंडविड्थ क्या आ जाएगा, 2b, जो कि होता है एंड इट्स करेक्ट, और वाइड बैंड एफएम के केस में बैंडविड्थ क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ प्लस बी। ठीक है, अब क्योंकि ऑब्वियसली डेल्टा एफ का वैल्यू बी से बहुत ज्यादा है,
तो ये अप्रोक्सीमेट कर दिया जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ के लिए। क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने का है नहीं। सिंपल आपने एक मैसेज सिग्नल लिया, मैसेज सिग्नल को सेल्स में ब्रेक किया, सेल्स का जो टाइम पीरियड है वो स्टेयर के सिग्नल के हिसाब से किया, सैम्पलिंग करी तो सैम्पलिंग में नाइक्विस्ट रेट लगा दिया, नाइक्विस्ट रेट लगाने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद ये बोला कि भाई सैम्पलिंग कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आउटपुट किस तरीके से आएगा, और उसी चीज़ को अप्रॉक्सीमेट करते हुए ये देखा कि रेक्टेंगुलर पल्स का जो आपके पास फूरियर होता है वो एक सिंक फंक्शन होता है, सिंक फंक्शन को आगे अप्लाई किया, सॉल्व करके बैंडविड्थ जो आई दैट वाज एक्सपेक्टेड नॉट टू बी करेक्ट। वाई? क्योंकि नैरो बैंड की इक्वेशन रखी तो वो 4 भी आ रहा था, तो उसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया एंड देन द फाइनल बैंडविड्थ इज 2 ऑफ डेल्टा एफ प्लस बी। तो अब इस पे कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आप 2 ऑफ डेल्टा एफ प्लस बी के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं फटाफट। कौन सा सेक्शन है ये? राहुल पाल, प्रेजेंट मैम। ऋषभ कुमार, ऋषभ कुमार प्रेजेंट मैम। ऋषभ सक्सेना, यस मैम। ऋषभ, रोहन राजपूत, यस मैम। चौधरी, प्रेजेंट मैम। रोहित कुमार सिंह, यस मैम। साक्षी गुप्ता, प्रेजेंट मैम। साक्षी वर्मा, प्रेजेंट मैम। सांची, प्रेजेंट मैम। देश, प्रेजेंट मैम। सत्यम, प्रेजेंट मैम। सिंह, प्रेजेंट मैम। सौम्या सिंह, सौरभ सुर, प्रेजेंट मैम। नीलेश, शानिग्ध, प्रेजेंट मैम। शांतनु, प्रेजेंट मैम। कीव, शाश्वत, प्रेजेंट मैम। जी, यस मैम। शिवम गुप्ता, प्रेजेंट मैम। शिवम वर्मा, प्रेजेंट मैम। कांगी सिंह, मैम प्रेजेंट मैम। मैम सी ओनर प्रेजेंट। कौन? प्रेजेंट मैम। शिवांकी, प्रेजेंट मैम। श्रेय, श्रुति, श्रुति सेकंड, शुभ, प्रेजेंट मैम। शुभम, श्वेता, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। सिद्धांत श्रेय। बंसल, मैम सिद्धांत बंसल प्रेजेंट। सिद्धार्थ, स्पर्श, प्रेजेंट मैम। तांश, सूरज, तनिष्क, प्रेजेंट मैम। तान्या, प्रेजेंट मैम। तान्या परवाल, प्रेजेंट मैम। यस मैम। तुषार तेगवानी, मैम। उज्ज्वल, मैम। उज्ज्वल राणा, प्रेजेंट मैम। उज्ज्वल शुक्ला, उज्ज्वल त्रिपाठी, प्रेजेंट मैम।
उमेश, उत्कर्ष, Present, ma'am. उत्कर्ष चौधरी, Umesh Sir is present. उत्कर्ष राजपूत, Present, ma'am. उत्कर्ष श्रीवास्तव, Ma'am, Udit Shukla present. पटेल, Present, ma'am. वंश, Present, ma'am. कार्तिका, ललित, Yes, ma'am. दी, Present, ma'am. यश, Present, ma'am. यादव, यश द्विवेदी, Present, ma'am. शर्मा, Present, ma'am. टी जायसवाल, Present, ma'am. सागर शर्मा। Yes, ma'am. Sagar Sharma. Ma'am. Ma'am, excuse me, ma'am. हाँ हाँ बोलो। मैम Ma'am, श्रेय Shrey प्रेजेंट present. आवाज नहीं आई थी शायद। अच्छा ठीक है, और कोई? Ma'am, Ujjwal Shukla present. एक सेकेंड, श्रेय। अच्छा, और Ujjwal Shukla. चलिए ठीक है, बाकी मैं डाउनलोड कर चुकी हूँ। आई विल चेक इट फ्रॉम देयर। थैंक यू।